یاد دوستانہ دیتے رہیں کہ یہ تو جناب بھائی تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، فلاں ہے. مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیوں کہ میرے اگر ذاتی مفادات لینے ہوتے تب تو بات تھی. جن مشرف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ شہباز شریف بہت اس کے قریب تھا، تو جن مشرف اللہ کو غریق رحمت کرے، کیا مجھے ان کو لڈو پیڑے اور مٹھائی مل گئی؟ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی کہا جاتا ہے، لیکن انہیں فرق نہیں پڑتا. لوگ کہتے ہیں مشرف کے بڑا قریب تھا تو اس نے کون سا مجھے لڈو پیڑے کھلائے. نواز شریف کے ساتھ مجھے بھی جیل میں رکھا. اسلام آباد میں بارہ بائی پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کئی ایسے راز ہیں جو وہ قبر میں لے کر جائیں گے. ملک میں وسائل کی بندر بانٹ سب کے سامنے ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مل کر ملک کو آگے لے کر جائیں گے. شہباز شریف نے کہا کہ بارہ بائی پاس منصوبے کی تکمیل میں آرمی چیف کا بڑا کردار ہے. وہ اگر سپورٹ نہ کرتے تو یہ کام مکمل نہ ہوتا. آرمی چیف نے بڑی کمٹمنٹ دکھائی ہے. ڈیجیٹل یوتھ ہب کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ بجٹ میں طلبہ کے لیے 80 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے. دوبارہ منتخب ہوئے تو نوجوانوں کے لیے مختص رقم میں اضافہ کریں گے. اعتزاز احسن کا سپریم کورٹ سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم پر از خود نوٹس لینے کا مطالبہ. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے آغاز میں ہی اعتزاز احسن نے چیف جسٹس سے مطالبہ کر ڈالا. موقف اپنایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کسی بھی جگہ چھاپے اور گرفتاری کا اختیار دیا گیا ہے. نئے قانون کے مطابق بغیر سرچ وارنٹ کسی کے بھی گھر میں گھسا جا سکتا ہے. یہ کوئی پرائیویٹ انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں ہیں کہ اشیانوں پر چھاپے مارے. گھر تو محفوظ جگہ ہوا کرتی ہے. قانون میں ترمیم سے یہ تحفظ ختم کیا جا رہا ہے. عدالت ورچوئل فل کورٹ بنا کر یہ کیس سنے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. چیف جسٹس اپنی ثوابدید پر از خود نوٹس نہیں لے سکتا. دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے باقی دونوں دھڑے اس بل پر کیسا رد عمل دیتے ہیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم قومی اسمبلی سے پاس ہو چکی ہے، جبکہ سینٹ میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے اعتراض پر یہ بل سینٹ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے. فوج کو کسی بھی غیر آئینی اقدام سے روکیں گے. ہم آئین اور عوام کا دفاع کریں گے. جس کا کیس آئین و قانون پر اترے گا وہ کامیاب ہوگا. سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت میں چیف جسٹس کے ریمارکس. سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. درخواست گزار اعتزاز احسن نے کہا کہ ججز کی چھٹیاں منسوخ کریں، سب کو بلائیں، آج ہی فیصلہ کریں. اعتزاز احسن کی استدعا مسترد. چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ جانتے ہیں کہ ملک اور اس عدالت میں مشکل وقت چل رہا ہے. 9 مئی کو بہت سنگین واقعات ہوئے. آرم فورسز کو غیر قانونی کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اعتزاز احسن نے جب کہا کہ مظاہرین کو گولی کیوں نہیں ماری تو مجھے بہت دکھ ہوا. فوج کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے شہریوں پر گولیاں نہیں چلائیں. پاک فوج عوام اور ملک کے دفاع کے لیے ہے. پاک فوج نے گولی نہ چلا کر درست اقدام کیا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کو ٹرائل سے متعلق یقین دہانی فوج کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے کرائی ہے. جو یقین دہانی کرائی ہے پوری کی جائے گی. آئین و قانون کو پس پش ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی. توشخانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف درخواست میں تحریک انصاف کے چیئرمین کو فوری حکم امتناع نہیں ملا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت 3 بجے تک ملتوی کر دی. دوران سماعت چیف جسٹس اور خواجہ حارث میں گرما گرم بحث. خواجہ حارث نے کہا سیشنز کورٹ نے ان کے گواہ پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی. آج فیصلہ محفوظ کرنے کا بھی کہہ دیا ہے. جب تک معاملہ ہائی کورٹ میں ہو کوئی فیصلہ کیسے سنایا جا سکتا ہے. خواجہ حارث نے جج کے فیس بک اکاؤنٹ سے متعلق FIA کی رپورٹ بھی یک طرفہ قرار دے دی. چیف جسٹس نے کہا خواجہ صاحب 3 بجے آپ کو سنیں گے. آپ ابھی یہاں بیٹھیں اور چائے پئیں. پتہ نہیں سیشنز کورٹ کی کینٹین میں چائے کیسی ہوگی. آپ سیشنز کورٹ جج کو بتا دیں ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے. سماعت 3 بجے تک ملتوی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشخانہ کیس میں وقفے کے بعد سماعت. تحریک انصاف کے وکیل کی سماعت کی مخالفت. جج ہمایوں دلاور نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو دلائل دینے کی ہدایت دی. ریمارکس دیے کہ عدالت فیصلہ محفوظ نہیں کرے گی، صرف دلائل سنے گی. جج ہمایوں دلاور نے آج چیئرمین PTI کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان. کاروبار کے دوران اسٹاک مارکیٹ گزشتہ 6 برس کی بلند ترین سطح 49,000 پوائنٹس کو عبور کر گئی. انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر 1 روپے 38 پیسے سستا ہو کر 288 روپے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1.5 روپے مہنگا ہو کر 294 روپے کا ہو گیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ آئین کی پابندی سب سے زیادہ چیف جسٹس آف پاکستان پر لاگو ہوتی ہے. اسلام آباد کے فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس میں پاکستان بار کونسل کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ اس منصب پر میری اولین ترجیح اپنی برادری کے مسائل کا حل بھی تھا. ماضی میں دیکھا گیا کہ سربراہ ادارے کا آیا اور سب کچھ اوپر نیچے ہوتا رہا. پارلیمنٹ میں بل پیش ہوئے ہیں، ابھی بہت کام کرنا پڑا ہے. پاکستان بار کونسل کی جانب سے آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں ترمیم کی شدید مذمت. ایک بیان میں کہا وفاقی حکومت فوری طور پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل واپس لے.
इस बिल से खुफिया इदारों को किसी भी शहरी को हिरासत में लेने की खुली छूट दे दी गई। तरमीम से खुफिया इदारों को सर्च वारंट के बगैर किसी भी शहरी या जगह की तलाशी की छूट दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम आईन पाकिस्तान से भी मुतसादिम है। तवक्को है सेनेट की कायमा कमेटी मुजव्वज़ा तरमीम को मुस्तरद कर देगी। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कहते हैं कि इलेक्शन आगे बढ़ाने की बातें हो रही हैं। इलेक्शन मुलतवी होने की बात वज़ीर आज़म के बयान से जोड़ी जा रही है। मुस्लिम लीग नून एक दिन इंतखाबात मुलतवी नहीं करना चाहती। नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होना मुमकिन नहीं। इंतखाबात को पुरानी मरदमशुमारी पर कराएं तो मुमकिन होगा। मसाइल से निकलने के लिए बर वक्त इंतखाबात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले इंटरव्यू में कहा था कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। इस्लामाबाद के सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा बच्ची रिजवाना की सेहत में नुमाया बेहतरी। रिजवाना के प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 80,000 हो गए। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर फरीद जफर का कहना है रिजवाना की सांस में बेहतरी पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी है। उम्मीद है रिजवाना की सेहत आइंदा 24 घंटों में मजीद बेहतर होगी। रिजवाना के जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन में कमी हो रही है। इन्फेक्शन में मजीद कमी के बाद बाजू की सर्जरी की जाएगी। लाहौर में मुबैना तौर पर रात देर तक ट्रेनिंग करने वाले वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान को पुलिस उठाकर ले गई। तारुफ कराने पर उल्टा पुलिस ने कहा हम पर कौन सा एहसान किया है, दोस्त ने आकर थाने से छुड़ाया। एहसन रमज़ान ने कहा कि अपने ही मुल्क में जलील और रुस्वा किए जाने पर अफसोस है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से इंक्वायरी का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक रात 10 बजे के बाद स्नूकर क्लब नहीं खोले जा सकते। निगरान वज़ीर आला ने भी नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब, तहकीकात का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्नूकर चैंपियन से नारवा सलूक किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं, अहम फैसला आज मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत कमेटी में दौरा भारत पर गौर होगा। वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी ने कहा पाकिस्तान की टीम्स भारत जाकर खेल सकती हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए। भारत की दीगर खेलों की टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा में पौधा भी लगाया। 3 रोज़ा दौरे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आर्मी चीफ, साबिक़ सदर ज़रदारी, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें होंगी। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक दौरे में पोलैंड में बिजली ट्रांसमिशन लाइन के मुआहदों, कशीरमंद मार्केट के मनसूबों से मुताल्लिक़ मुआहदों पर पेशरफ्त की जाएगी। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। अचमकाम, अपर नीलम, शारदा, अड़ांगकील में मूसलाधार बारिश। मुजफ्फराबाद के नवाह में राड़ा दमेशी के मकाम पर भारी लैंड स्लाइडिंग के बायस दर्जनों रिहायशी मकानात मलबे तले दब गए। जानी नुकसान की इतला नहीं। लैंड स्लाइडिंग के बायस कब्रिस्तान भी मुतासिर। लोग कब्रिस्तान से अपने प्यारों की कब्रों से मैयतें दूसरी जगह मुंतकिल करने पर मजबूर। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और तेज़ हवाएं। 120 फीडर्स ट्रिप कर गए। पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, पब्बी, तंगी, सवात समेत दीगर इलाकों में बिजली की तरसील मुतासिर। पेस्को तर्जुमान के मुताबिक 80 फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। दरिया रावी में कबीरवाला के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। पानी बस्तियों में दाखिल, कई एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर हुई। बंद की मरम्मत के लिए खड़ा ट्रैक्टर भी सैलाबी रैले की नज़र हो गया। दरिया सतलुज में ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा। लैया में दरिया सिंध में कटाव से ज़मीनें और फसलें दरिया बुर्द हो गईं। मेलसी साइफन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी। सक्कर से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। आइंदा 24 से 48 घंटों में पानी की सतह में मजीद कमी का इम्कान। PDMA ने 4 से 6 अगस्त तक दरिया जेहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। नसीराबाद, जाफराबाद, झलमगसी समेत बलोचिस्तान की बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। झलमगसी में सैलाबी सूरत हाल के बावजूद भी पोलियो वर्कर्स फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़। सैलाब से मुतासरा गोच खब्बर में मर्द और ख़वातीन पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। बलोचिस्तान भर में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 8 में घर से लड़की की फंदा लगी लाश मिली है। SSP साउथ असद रजा के मुताबिक लड़की की चंद साल कबल शादी के बाद अलहदगी हो गई थी। लड़की घर में अपने भाई के साथ रहती थी। लड़की के भाई ने पुलिस को बताया कि अलहदगी के बाद से खातून ज़हनी दबाव का शिकार थी। लड़की की शनाख्त कर ली गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लड़की ने खुदकुशी की है। वाक़े की जगह से नींद की गोलियां भी मिली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी।
चीनी की कीमतों को पर लग गए। हुकूमत किचन के लाजमी आइटम की कीमत कम करवाने में नाकाम। चीनी की फी किलो होलसेल कीमत 2 रुपए बढ़कर 142 रुपए पर जा पहुंची। गुज़श्ता 4 रोज में चीनी की होलसेल कीमत में 7 रुपए का इजाफा हुआ। मार्केट ज़राए का बताना है कि शुगर मिल्स मालिकान पंजाब में क्रैकडाउन पर अपना रद्द अमल दे रहे हैं। मुल्क में मुख्तलिफ अमराज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 200 से ज़ायद अद्वियात की किल्लत से बहरान पैदा हो गया। मार्केट में स्मगल शुदा और जाली अद्वियात फराहमी। ज़राए के मुताबिक टीबी, खून पतला करने वाली अद्वियात, मुख्तलिफ वैक्सीन्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्शन की किल्लत हो गई है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि पैदावारी अखराजात में इजाफे के बायस दर्जनों अद्वियात नहीं बनाई जा रही। कीमतें बढ़ने के बायस इम्पोर्टर्स भी बैरून मुल्क से अद्वियात मंगवाने से गुरेजा। ट्रैप हुकाम ने मजीद 220 से ज़ायद अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ वजारत सेहत को दे दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शहरयार आफरीदी और उनके भाई समेत 10 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शहरयार आफरीदी और उनके भाई फरुख जमाल की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर शहरयार आफरीदी समेत 10 PTI कारकुनान के नज़रबंदी ऑर्डर मुअत्तल कर दिए। शहरयार आफरीदी की किसी और केस में गिरफ्तारी रोकने के लिए 7 दिन की हिफाजती जमानत भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि तोशाखाना केस के मेरिट्स पर दलाइल अभी नहीं दिए गए। तोशाखाना केस की अब तक की समाअत को ज़ेर इल्तवा केस न समझा जाए। आइंदा समाअत पर किसी और बेंच के सामने केस मुकर्रर हो सकता है। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद मुमकिन है कि यह बेंच आइंदा समाअत पर दस्तयाब न हो। केस की आइंदा समाअत 4 अगस्त को होगी। जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2 अगस्त को केस की समाअत की थी। तर्जुमान PTI का पार्टी रहनुमा इफ्तिखार दुरानी के इस्लामाबाद से अगवा का दावा। कहा, इफ्तिखार दुरानी के अगवा से मुतल्लिक तफसीलात जमा की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद में इफ्तिखार दुरानी के घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जुलाई में लापता अफराद की तादाद में 157 मजीद अफराद का इजाफा। मजमूई तादाद 9736 से बढ़कर 9893 हो गई। लापता अफराद कमीशन ने अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल अब तक जबरी गुमशुदगियों के 690 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 615 मुकदमात निपटा दिए गए। कराची के इलाके अल्फला में 2 तालिब इल्मों को जाली मुकाबले में जख्मी करने के इल्जाम में SHO हिदायतुल्लाह गिरफ्तार। 3 अहलकार फरार हो गए। गोलियां मारे जाने से पहले दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने की वीडियो सामने आई थी। अहले खाना के मुताबिक नूर मोहम्मद और फहीम अहमद मस्तूंग से छुट्टियां गुजारने वालिदा के पास कराची आए थे। स्कैंडल की शिकार इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक VC की अमरीका जाने की कोशिश नाकाम। डॉक्टर अतहर महबूब को कराची से अमरीका जाने से रोक दिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक साबिक वाइस चांसलर को बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात के लिए ऑफलोड किया गया। पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पड़ोसी मुल्क को मुज़ाकरात की दावत पर अमरीका का रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है, हम हमेशा कहते रहे हैं कि पाकिस्तान भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात है। पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतल्लिक सवाल पर वाज़े किया कि पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। हम आज़ादाना, शफाफ और साफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी वफाकी तहकीकाती इदारा FIA और पुलिस मोबाइल फ़ोन हैक करने के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइली अखबार ने दावा किया है कि FIA और पुलिस ने इसराइली साइबर टेक्नोलॉजी सिंगापुर के जरिए खरीदी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी 2012 से FIA और पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल है। बैनुल-अक़वामी शिपमेंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसराइली कंपनी ने 2019 तक पाकिस्तानी कंपनीज को FIA को मसनूआत फ़रोख्त की। 2012 में सिंध पुलिस ने भी मोबाइल डेटा फॉरेंसिक के लिए इसराइली कंपनी की डिवाइस हासिल की। वाज़ेह रहे कि बेलारूस, चीन, युगांडा, रूस और बांग्लादेश समेत कई ममालिक इसराइली कंपनी से ये टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। चीन में हालिया बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। गाँव और देहातों के साथ साथ शहरी इलाके भी बुरी तरह मुतासिर। चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में सड़कें नदियाँ बन गईं। शहर की गलियाँ हौलनाक मनाजिर पेश करने लगीं। चीनी हुक्काम के मुताबिक बीजिंग से अब तक 52,000 से ज़ायद अफराद नकल बकानी कर चुके हैं। मजीद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी।
ایران میں حجاب کی خلاف ورزی پر نئے قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ، حجاب قانون میں قید، مصنوعی ذہانت کے ذریعے نگرانی اور کریک ڈاؤن کی تجویز شامل۔ امریکی میڈیا کے مطابق حجاب قانون کا مجوزہ بل اتوار کو بورڈ آف گورنرز کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اہلیہ صوفی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق جسٹن ٹروڈو اور صوفی نے علیحدگی کی قانونی دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ دونوں کی رفاقت 18 سال قائم رہی، ان کے 3 بچے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو اور صوفی نے مئی 2005 میں شادی کی تھی۔ پی سی بی کے سابق چیئرمین اور سابق ٹیسٹ کرکٹر اعجاز بٹ انتقال کر گئے۔ اعجاز بٹ کی عمر 85 برس تھی۔ اعجاز بٹ طویل عرصے سے بیمار تھے۔ اور ریچھ ہے یا ریچھ کی کھال پہنے انسان؟ مشرقی چین کے چڑیا گھر میں ریچھ انسانوں کی طرح اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد چڑیا گھر انتظامیہ کو وضاحت دینی پڑ گئی۔ چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سن بیئرز نامی ریچھ کی یہ نسل دنیا میں سب سے چھوٹے ریچھوں کی نسل ہے اور عموماً ان کی قد کاٹ ایک بڑے کتے جتنی ہوتی ہے۔